Hello students, today we will be starting the new chapter and chapter is relation and function. Now first of all, what is the relation? Relation means one is related to other, means A is a father of B, या if we are in geometry length की बात करें, two line segments, length line L is greater than B, line A is greater than B, इस तरह की जो relation है उसको हम कंपेयर करते हैं। या कोई फार्मूला मान लो दो हैं, उसमें A और B दो हैं, A is equal to B plus 1, ये वो एक दूसरे से जो एलिमेंट है उस ग्रुप के वो रिलेटेड होते हैं किसी न किसी फार्मूले से, कोई रिलेशन हो या कोई फार्मूला हो, ठीक है। बिफोर कमिंग टू दैट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? नाउ an ordered pair is a pair of objects or elements taken in specific order such that A comma B. A comma B means A is related to B. A is related to B. Okay. उसके बाद आता है A is related to B, कोई फार्मूला है, कोई रिलेशन है, वो उस तरीके से ये कोई रिलेटेड है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, लेट देयर आर टू ऑर्डर्ड पेयर A, B एंड C, D, दो ऑर्डर्ड पेयर है ना, एंड इट इज गिवन दैट दीज टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उन दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट A इज इक्वल टू C एंड सेकंड एलिमेंट B इज इक्वल टू D, ठीक है। उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, तब कह देंगे दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है दे आर इक्वल। ओके, एक इसमें एक पॉइंट और आता है, हम ऑर्डर्ड पेयर को मींस इस A कॉमा B और ये स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। लेट्स वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस A कॉमा B is not equal to this A comma B। अब इनमें फर्क क्या है? What is why they are not equal? अब ये कर्ली ब्रैकेट के A comma B कर्ली ब्रैकेट में देखा, this represent a set, this is a set, A comma B इस सेट के एलिमेंट है, and this is ordered pair, this is ordered pair, ठीक है भाई। इसलिए ये दोनों नहीं है, this is a set and A comma B this is an ordered pair। ओके, तो इनको हम ऑर्डर्ड पेयर समझ गए। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट A and B be two non-empty set, A and B two non-empty set, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. Cartesian product of set A and set B, where A and B are non-empty sets, is denoted by A cross B, and is the set of all ordered pair A comma B. It is the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and the second element belong to second set, that is B. जो A है, A belongs to this set A and this B second जो element है उस ordered pair का, that belongs to second set. Okay, that such that A belongs to A and B belongs to B. Is it clear? Now symbolically, how we can write A cross B? A cross B, A comma B, A comma B, हमने क्या बोला था? It's a set of all ordered pair, set of all ordered pair। अब A cross B क्या है? A comma B such that this A belongs to set A and this B belongs to the second set, that is B। ये इसका symbolic representation हो गया भाई, A comma B। I'd say A cross B is the collection of sets, it's a collection of sets such that A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। Now, अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, what is the meaning of Cartesian
product. What is the meaning of Cartesian product? Now let there is a set A having an element 2, 4, 6 and set B having an element 1 and 2. Okay. Now first of all let's find out A comma B. तो it's a collection of, it's a set of ordered pair. अब देखिए, अब पहले हम जितने ऑर्डर पेयर लिखेंगे पहले सेट A का एलिमेंट होगा फिर सेट B का एलिमेंट होगा। तो पहले हम 2 किसके साथ रिलेट करेगा, 1 के साथ और 2 के साथ। क्या होगा 2, 1, दूसरा 2, 2, 2, 2, नेक्स्ट 4, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2 एंड नेक्स्ट 6, 1, 6, 1 एंड 6, 2। ठीक है भाई, ऑर्डर पेयर हो गए। ये सभी ऑर्डर पेयर आ गए जो सेट ए और सेट बी से बन सकते हैं। ठीक है, 6 ऑर्डर पेयर हो गए। इसके एलिमेंट 3 थे, इसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब यहां पे देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं 3, बी में कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए दैट इज 3 into 2 that is equal to 6. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है, अब बी क्रॉस ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी में जो ए के एलिमेंट है वो पहले और बी के एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट होगा। लेकिन बी क्रॉस ए तो यहां से इधर पहले बी के एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट। पहले बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट 1 कितना। अब ये सोच लो इसका इनवर्स है, ए क्रॉस बी का इनवर्स ही हो गया बी क्रॉस ए। तो कितना हो गया 1, 2 एंड 2, 2, 2। अब दूसरा क्या है 1, 4, 2, 4, 1, 4 और 2, 4 और फिर 1, 6, 2, 6, 1, 6 एंड 6, 2, 6। ठीक है, इट्स ए कलेक्शन। अब आपको दिख रहा है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। एलिमेंट्स देखो, अब इनके ऑर्डर पेयर कंपेयर करते हैं। ए क्रॉस बी क्या है 2, 1, ये 1, 2 और ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ हो, सेकंड। लेकिन इसमें तो ये तो है ही नहीं। तो therefore you will say A cross B is not equal to B cross A। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोनों में बराबर होंगे, बट A cross B is not equal to B cross A। ठीक है, नो अब हम देखते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ A cross B where A is this set and B is this set। अब A cross B के ऑर्डर्ड पेयर कौन से होंगे भाई, A cross B के ऑर्डर्ड पेयर ये होंगे। इनका ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ए क्रॉस बी ये 2, 1 ये हो गया 2, 1 फिर 2, 2 नेक्स्ट 4, 1 नेक्स्ट इज 4, 2 नेक्स्ट इज 6, 1 एंड 6, 2। ठीक है भाई, ये हो गया इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम डायग्रामिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी को। हमने सेट ए लिख दिया, सेट बी के एलिमेंट लिख दिए। अब कैसे, क्या था ए क्रॉस बी, क्या है ए क्रॉस बी। नाउ 2 is related to 1, 2 is related to 2, 4 is related to 1, 4 is related to 2, 6 is related to 1, 6 is related to 2। तो 2, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 2, 6, 1, 6, 2। तो क्या हो गया, दिस इज द डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। इज इट क्लियर। अब देखिए कोई हम एक, ये तो था मान लो सेट ए है, सेट ए इज हैविंग, कोई सेट ए है हैविंग एलिमेंट ए बी या कोई x, y, z, ये एलिमेंट है इसके। ठीक है, अब आपको क्या, ये एलिमेंट है। अब आपको मान लो a क्रॉस a निकालना।
ए क्रॉस ए क्रॉस ए। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस ए क्या होगा? ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, बी आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो एक और लेते हैं, ये तो डबलेट हो गया। अब ट्रिपलेट की बात करते हैं। इफ ए इज एनी सेट हैविंग एलिमेंट x, y, z, इसमें हम ट्रिपलेट की बात करते हैं। ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या होगा? अब 3 बने। अब अगर मान लो एक सेट और ऐड कर दो, लेकिन इसमें सेम सेट है ए और फिर उनके हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर जो ट्रिपलेट बनेगा वो उसी हिसाब का बनेगा। अब इसमें ट्रिपलेट को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे? लेट ए बी सी, ट्रिपलेट हो गया। सच दैट अब ए भी किसको बिलोंग करेगा? ए को, बी भी किसको? ए को, सी भी किसको? ए। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये ट्रिपलेट हो गया। इज इट क्लियर? नाउ अब हम इस पे कुछ रिजल्ट देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, एंड वी विल लर्न देम एंड वी विल अप्लाई देम। नाउ लेट्स सी सम रिजल्ट्स व्हिच वी विल कीप इन माइंड नाउ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्योरम 1। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, व्हाट इज इट इक्वल टू? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये समझ लो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकंड थ्योरम, ये इसी का सेकंड पार्ट, ये यूनियन पे थी, ये इंटरसेक्शन पे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी। अब क्या है? ये क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ओवर नेगेटिव। अब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है भाई? अब इसमें देखते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो क्या करेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ में और सेकंड का सेकंड के साथ में और इंटरसेक्शन। तो क्या होगा? ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी। अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, सी के सारे एलिमेंट डी में है, तो ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सभी क्या है? दे विल लाई इन द सेट बी क्रॉस डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी कि उसमें हम ए क्रॉस ए को देखते हैं। ए क्रॉस ए कैन बी रिटन एज A cross B intersection B cross A. A cross B intersection B cross A. When A is a subset of B, then A cross A can be written like this. एक और है भाई, if A cross B is equal to B cross A, A cross B is equal to B cross A. हमने देखा था भाई, when A and B are not equal, when A and B are not equal, in that case A cross B will not equal to B cross A. अब ये दोनों अगर इक्वल है, this is only possible when A is equal to B. और if A is equal to B, then you can say that A cross B is equal to B cross A. क्या है?
A cross B is equal to B cross A if and only if A is equal to B, or if A is equal to B, then you can say that A cross B is equal to B cross A. Now let's see the seventh theorem. अब इसमें देखिए A क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. और इसमें आ जाइए A क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. अब ये रिजल्ट कैसे है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है? अब देखिए भाई A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A का कॉम्प्लीमेंट. इनके अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. ठीक है. अगर ऐसा होता, अगर अपने पास ये हो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो, तो क्या होगा? दोनों के अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? यूनियन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. इज इट क्लियर? और आपको ये भी पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दिस इज A. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी दिस. अब A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस दिस. पहले इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड. A क्रॉस, अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C. चलो कॉम्प्लीमेंट को रहने दीजिए, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है और इनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है. तो क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट, जो भी ये है यहां पे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा? दिस यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट. और जो भी ये है यहां यूनियन है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. जो भी ये है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ C का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है भाई. नाउ दिस इज इक्वल टू, आपको B का कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B एंड कॉम्प्लीमेंट C क्या होगा? C. तो क्या होगा? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो यहां पे आ जाओगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है? A क्रॉस B और A क्रॉस इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ठीक है भाई. ये कैसे लिखेंगे? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ओके भाई. अब इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ, यहां पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C और पूरे का कॉम्प्लीमेंट. अब इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट. जो भी है यहाँ पे, ये जो भी है ये भी सेम वे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस क्या होगा भाई? जो भी ये सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन. और कॉम्प्लीमेंट ऑफ C का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. दिस इज इक्वल टू A क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? C. तो A क्रॉस B यूनियन C. A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. तो क्या होगा? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. Is it clear? This was all about the Cartesian product result. Okay, let's come to the exercise. Now, let's come to the exercise 2.1. The first question is, you have to find x and y if, let's see the second part of it. These two ordered pair are equal. X plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1. ये ordered pair equal है. ये ordered pair equal है तो it means first element first के equal और second element second के equal होगा. Now first element first के equal, therefore x plus 1 is equal to 3. तो x कितना होगा? 3 minus 1 that is equal to 2 and y minus 2 is equal to 1. Second element second के equal, y minus 2 this is equal to 1 तो y is equal to 1 plus में 2 that is equal to 3. Is it clear? तो ये कर लेंगे आप. Let's come to the second. Let A is a set having element 1, 3, 5 and B has element 2 and 3. Then you have to show that A cross B is not equal to B cross A.
सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B देखते हैं। व्हाट इज A क्रॉस B? A क्रॉस B यानी कि A से B के। अब 1, 2, 1, 3, फिर 3, 2, 3, 3। जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आप लिख दीजिए। 1, 2, 1, 3, और 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, फिर 5, 2, 5, 3, 5, 2 एंड 5, 3। ठीक है भाई, ये ऑर्डर पेयर हो गए। अब देखते हैं B क्रॉस A क्या होता है। B क्रॉस A, B क्रॉस A इज इक्वल टू मीन्स पहले B के एलिमेंट और फिर A के। B क्रॉस A पहला सेट कौन सा है? B, तो B के पहले एलिमेंट आएंगे फिर A के। तो 2, 1, 2, 1, फिर 2, फिर क्या आ गया? 3, 1, फिर 3, 1, फिर 2, 3, 2, 3, फिर 3, 3, 3, फिर उसके बाद 2, 5, 2, 5, देन 3, 5, 3, ठीक है ना। जस्ट सी, ये 1, 2 ये 2 का इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही इक्वल है, ये 3, 3, लेकिन हमें पूरा बताना है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है या नहीं। ये नहीं है, हमें प्रूव करना है। तो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग दिस, तो यू कैन से दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है, you can do on your own. Let's come to the fourth. If A is equal to जो सेट A है क्या है? X such that X is a whole number. Whole number कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4. And X is less than 2. X is less than 2. And what is set B? Set B is X such that X is a natural number. X is a natural number and X is greater than 1 and less than 5. And C is this one. You have to find A cross B intersection C and A cross B union C. इनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको लेट्स रब इट, इसको हम लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट। अब पहले हम इनको सेट लिखते हैं। A B C क्या है? सेट A क्या है? व्हाट इज सेट A? अब X such that X is a whole number. Whole number क्या होते हैं? 0, 1, 2 and goes on. X is less than 2. यानी कि whole numbers less than 2. Whole numbers less than 2, तो सेट A क्या हो गया? 0 and 1. दो एलिमेंट हो गए। फिर B के एलिमेंट देखते हैं भाई। व्हाट इज B? X is a natural number and lying between 1 and 5. तो क्या होगा? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1 से ग्रेटर और 5 से लेस। ठीक है, नाउ कम टू C. इट इज गिवन 3, 5। ठीक है ना। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है? B इंटरसेक्शन C। व्हाट इज B इंटरसेक्शन C? इन दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन कितना? 3। B इंटरसेक्शन C क्या है? सेट हैविंग एलिमेंट 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्या है? 0, 1 क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या है? ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाइए मैं इनके। दिस A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इसका 0, 3, 1, 3 क्या आ गया ऑर्डर पेयर भाई? 0, 3 एंड नेक्स्ट इज 1, 3। ठीक है, आ गया भाई। क्या आ गया? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है आपको? A क्रॉस B यूनियन C। क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B यूनियन C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड B यूनियन C। व्हाट इज B यूनियन C? B यूनियन C, B और C के सभी एलिमेंट्स को कलेक्शन, एक बार सभी एलिमेंट्स को लिखो। क्या हो गया भाई? 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। सभी आ गए। 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 पहले ही आ गया, ये 5। ठीक है,
नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो कितना होगा, व्हाट इज ए, 0,1 क्रॉस बी यूनियन सी, क्रॉस सेट बी यूनियन सी क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू इसका क्रॉस। ठीक है, अब 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5, 1 to 2। ठीक है भाई, अब 0 to 0,2, फिर 0,3, फिर 0,4, 0,5, फिर 1,2, 1,3, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। इज इट क्लियर, समझ में आ गया भाई? कर लेंगे ना। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम यूज कर देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें इनको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या है, ए क्रॉस, जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो उनको हमें यूं लगा लो कि प्रैक्टिकली हमें उनको प्रूव करना है। क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको हमें प्रूव करना है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल शो दैट दे आर इक्वल। अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। अब फर्स्ट में हमें सेट ए बी सी आर गिवन। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। अब उसमें बी यूनियन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। व्हाट इज बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। देखिए कौन से सभी एलिमेंट्स, बी यूनियन सी क्या है, उन सभी एलिमेंट्स को हम एक एक बार लिखेंगे। कौन सा, 2, then 3, then 6, then 7, 6 then 7। ठीक है भाई, क्या आ गया, बी क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसको फाइंड आउट करते हैं हम। ए, व्हाट इज ए, 1,4 क्रॉस बी यूनियन सी। व्हाट इज बी यूनियन सी, सेट हैविंग एलिमेंट 2 3 6 7। ठीक है भाई, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1,2 1,3 1,6 1,7 4,2। ठीक है, लिख लो इसको, 1,2, फिर 1,3 1,3 1,6 1,7, देन 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड के लिए हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका यूनियन करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए के एलिमेंट क्या क्या है भाई, 1 4 क्रॉस बी, बी क्या है 2 3 6। अब कितना हो गया, ए क्रॉस बी 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6, फिर 4,2 4,2, फिर 4,3 4,6। ठीक है भाई, तो इनका ए क्रॉस बी आ गया। फिर हम क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी देखिए भाई, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज सी, राइट इट, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी, ए क्या है 1,4 क्रॉस सी क्या है 2 3 7 2 3 7। तो क्या निकालें, क्रॉस 1,2 1,2 1,3, फिर 1,7, फिर 4,2 4,2 4,3 4,7। ठीक है भाई, अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, ए क्रॉस सी फाइंड आउट कर लिया, देन वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी यूनियन। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इनका
इन दोनों का यूनियन। ए क्रॉस क्या है, चलो लिख लो राइट हैंड साइड क्या है भाई, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इन ऑर्डर्ड पेयर का और इनका, इन दोनों कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दीज टू, यू हैव टू राइट देम, वो ऑर्डर्ड पेयर को सभी ऑर्डर्ड पेयर को एक एक बार हम लिख लेंगे। इसका कलेक्शन क्या हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 क्रॉस 1,2, फिर 1,2, फिर 1,3, 1,3 भी आ गया, 1,3। हम सभी को एक एक बार लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। 1,6, 1,6, फिर 1,7, इसको भी लिख लेते हैं, 1,7 कलेक्शन। फिर उसके बाद 4,2, 4,2, फिर 4,2 इसमें आ गया एक बार, दो बार नहीं लिखना। फिर 4,3, 4,3 और यहाँ भी एक बार आ गया, दो बार नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्या है 4,6, 4,6, देन 4,6, फिर ये बच गया था 4,7, ठीक है ना। लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखिए कंपेयर करते हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर को, 1,2, 1,3, 1,6, 1,7, 4,2, 4,3, 4,6, 4,7। therefore क्या लिखेंगे, therefore A क्रॉस B यूनियन C is equal to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. Is it clear? So this is how we can do left hand side and right hand side. जो ये सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट भी आप बिल्कुल सेम इसी तरह से, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, B इंटरसेक्शन C और A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर उसके बाद A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे, फिर A क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन, यानी कि जितने ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। अब सेम मैं बताता हूं कि इंटरसेक्शन में कैसे होता है, इंटरसेक्शन में कैसे होता है, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग होंगे, लेकिन सिर्फ इसी में से मैं इसी को बता रहा हूं। अब मान लो आपको A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो क्या करते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। तो क्या क्या है, 1,2 है, 1,3 है, फिर उसके बाद 4,2 है, 4,3। तो क्या थे, ये और ये, ठीक है, 4 होते हैं इसमें। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। There set A, B, C, D are given. We have to verify that A cross B intersection C cross D. This is equal to A intersection C cross B intersection D. हमें वेरीफाई करना, चेक करना। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, A क्रॉस B, A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे। A क्रॉस B, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ A, 2,3 क्रॉस B कितना है, 6,8। दिस इज A क्रॉस B। जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 2,6, फिर 2,8, देन 3,6, देन 3,8। नेक्स्ट आता है C क्रॉस D, C क्रॉस D, C क्रॉस D, C हैविंग एलिमेंट 1,2, 1,2 क्रॉस D 6,9, ठीक है। अब लिखिए A क्रॉस B 1,6, 1,6, फिर 1,9, 1,9, देन 2,6, 2,6, देन 2,9, 2,9, ठीक है भाई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ठीक है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, इनका A क्रॉस B इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए 2,6, यस इट इज गिवन 2,6, उसके बाद 2,8 नहीं है, 3,6 नहीं है, 3,8 नहीं है, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया भाई इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं
ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस डी फाइंड आउट करना, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन। अब 1 2 3 1 2, तो क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, 8 तो 2 आ गया, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू बी और डी में कॉमन क्या है 6, ठीक है भाई। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका क्रॉस, इनका क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्या है 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी क्या है 6। अब ये क्या होगा, एक एक एलिमेंट है दोनों का, तो ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट इससे एक इससे 2,6, ठीक है भाई। तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, एक ऑर्डर पेयर है, इसमें क्या है एक ऑर्डर पेयर है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 2,6 2, दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर व्हाट यू विल से, देयरफॉर ए क्रॉस बी intersection C cross D, this is equal to A intersection C cross B intersection D. Is it clear? Now let's come to the question number 9. Let A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. A cross B में 6 एलिमेंट है, यानी कि 6 ordered pair है। If 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट ये है भाई। अब 6 एलिमेंट है, 6 में से 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या क्या है 1,3 2,5 एंड 3,3। अब देखिए भाई कितने 6 ऑर्डर पेयर है, 6 ऑर्डर पेयर का कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए और बी में कितने कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 6 है, तो मान लो ए में 1 एलिमेंट, बी में 6 एलिमेंट, ठीक है भाई, ये हो सकते हैं। या 6,1 हो सकता है कि एक में 6 हो, दूसरे में ए में 6 और बी में 1 एलिमेंट हो। और क्या हो सकता है 2 और 3 हो सकते हैं भाई, ए में 2 एलिमेंट हो, बी में 3 एलिमेंट हो, या इसका रिवर्स हो सकता है। अब इसमें देखिए भाई 3 एलिमेंट, तो ए क्या होगा और बी क्या हो सकता है, तो भाई इनमें से 2 3 और 3 2, इस तरह से मतलब इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो जो सेट ए है, ए के एलिमेंट क्या होंगे 1, जो पहले एलिमेंट होंगे, तो ए के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 और 3, इसके 3 एलिमेंट है। और बी के एलिमेंट क्या क्या है, सेकंड जो है ए क्रॉस बी है, तो सेकंड जो एलिमेंट्स है वो क्या है बी के है, क्या 3 5 3, तो क्या हो गया 3,5। तो भाई इसके ए के एलिमेंट है 3, बी के एलिमेंट हो गए 2, तो टोटल कितना होगा, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे 3 × 2 दैट इज 6 एंड इट इज गिवन। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर तो दे रखे हैं, आपको रिमेनिंग बताने हैं। इनको छोड़ के सबसे पहले आप ए क्रॉस बी देख लो, ए क्रॉस बी लिख लो। ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्या है 1 1 3 1 5, फिर 2 3 2 5 3 3 3 3 5, तो क्या हो गया 1 3, फिर 1 5, फिर 2 3 2 5, फिर 3 3 एंड 3 5, ठीक है भाई 6 ऑर्डर पेयर हो गए। तो ये 3 तो दे रखे हैं, इनको छोड़ के बाकी बता दो, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी आर, ए क्रॉस बी आर कौन से इनको निकाल दो, 1,3 को छोड़ दो, इसको 2,5 को छोड़ दो और 3,3 इनको छोड़ दो भाई, क्या बच गए 1,5, फिर 2,3 और कौन सा बच गया
3,5 ये आ गया रिमेनिंग ऑर्डर पेयर हो गया. Is it clear? Now let's come to the last question of this exercise. The last question of this exercise, set A is a subset of B. Then we have to prove that A cross C is a subset of B cross D. B cross C for any set C. तो हम ये मान लेते हैं solution. Let A comma B and arbitrary ordered pair in A cross C. हम A cross C का एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखिए भाई A cross B तो क्या है, A cross B belongs to A cross B belongs to A comma B belongs to A cross C. अब इसका मीनिंग क्या है, A comma B belongs to A cross C. इसका मतलब जो ये A है, A belongs to A and B belongs to C. This implies that A belongs to A and B belongs to C. Now this implies that अब A is a subset of B. If any element belongs to A, it implies that element will belongs to B. So A cross A, this implies that A belongs to B also. Reason क्या होगा? Because A is a subset of B. A is a subset of B का मतलब है if any element belongs to A, that must belong to B also. Okay. Now A belongs to A, तो हम क्या लिखेंगे, A belongs to B because A is a subset of B. Now and B belongs to C. अब देखिए भाई, A belongs to B and B belongs to C. This means जो ऑर्डर पेयर है A comma B also belongs to B cross C. ठीक है भाई. अब देखिए भाई, A comma B belongs to A cross C. This implies that A comma B belongs to B cross C. Therefore A cross C is a subset of B cross C. Is it clear? This was all about exercise 2.1.